Good evening, dear students. In this particular video, we are going to discuss about Nernst equation. Nernst equation is a very important part of electrochemistry as per numerical point of view. Before moving toward Nernst equation, we have to remember some important points about an electrochemical cell. So, as we all know, electrochemical cells are the devices which convert chemical energy into electrical energy. In electrochemical cell, there are two separate halves. One is known as anodic half, second is known as cathodic half. So, I'm not going in the detail of that. So, any electrochemical cell can be represented as representation given here. This is your salt breeze. One half in left of salt breeze, second is in right of salt breeze. So this right half is known as cathodic half. ये जो इस तरफ हमारे पास हाफ है इसको हम कैथोडिक हाफ कहते हैं एंड लेफ्ट साइड वाले को कहा जाता है एनोडिक हाफ. Now, apart from this, in electrochemical cell, we know that there are two metal electrodes and they are dipped in electrolyte having same metal. So, in anode, M1 is a metal electrode and its concentration in electrolytic part is given here. Similarly, in cathodic half, M2 is another metal electrode. So now this single line which separate metal and Mn positive, this single line represent phase separation. Phase separation means the physical state of metal and M1N positive, ये जो दिए गए हैं यहाँ पे, इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो बेटा अलग अलग होती है. नॉर्मली मेटल इलेक्ट्रोड जो हमारे पास होता है वो सॉलिड होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक पार्ट जो है वो मोल्टन या एक्वस होता है. सो फेज सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है ये सिंगल लाइन जो यहाँ दिखाया गया है एंड दिस डबल लाइन रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रेज. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है लोन एंड RRCP. दिस simply explain what will happens in the anodic compartment and what will happen in the cathodic compartment. So this lone stand for, L stand for left, O stand for oxidation, A stand for anode and N stand for negative polarity. Means लेफ्ट साइड में जो कंपार्टमेंट होता है उसमें एनोड इलेक्ट्रोड होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. यहाँ ऑक्सीडेशन होगा हमेशा और इसको जनरली हमने लेफ्ट बोला है. सिमिलरली RRCP स्टैंड फॉर राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव. अपार्ट फ्रॉम दीज टू, दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव N and P, they also signify their reduction potential value usually. If we have two metal electrodes which one have negative standard potential, second have positive standard potential, then the electrode which have negative standard reduction potential is always act as anode and which have positive standard reduction potential that always act as cathode. So this is very important part of any electrochemical cell. इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि लोन किस चीज़ को सिग्निफाई करता है और ये जो RRCP है ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है. N and P मैं बता चुका हूँ ये दो काम करते हैं, एक इनकी पोलैरिटी के बारे में बताते हैं और सेकंड जो है हमारे पास वो है कि यदि आपके पास SRP वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है वो हमेशा एनोड का लिया जाएगा और जो पॉजिटिव होगा वो कैथोड रहेगा. एक चीज़ मैं यहीं बता देता हूँ, इफ़ वी हैव
suppose electrode A and B, and if SRP we are going to consider and both SRP are positive. In second case, let both SRP negative. If one is positive, one is negative, then I already told here नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो एनोड का काम करेगा और जिसका पॉजिटिव होगा वो कैथोड का काम करेगा. बट इफ बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव, इन सच केसेस दिस P stand for positive and N stand for negative. So if both are positive, then the electrode with more positive SRP is always act as cathode. Remember this. जो इनकी जनरल टर्म है वही यूज़ होगी बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो ज़्यादा जो पॉजिटिव होगा वो हमेशा कैथोड का काम करेगा और जो कम पॉजिटिव होगा वो एनोड का काम करेगा. Similarly, if both are negative, then the electrode potential, the electrode with SRP more negative will act as anode and less negative act as cathode. So this is very important point for any electrochemical cell in order to identify cathode and anode part. Second, oxidation and reductions, ये क्या होते हैं ये आप already redox reactions में पढ़ के आए हो सारे. So loss of electron is known as oxidation and gain of electron is known as reduction. Now इस रिप्रेजेंटेशन को याद रखिएगा बेटा. नॉर्मली ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोडक्ट की साइड लिखे जाते हैं और रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएक्टेंट की साइड लिखे जाते हैं. तो आप रिडक्शन को इस आर से भी याद रख सकते हो. आर स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड आर स्टैंड फॉर रिएक्टेंट आल्सो. सो इलेक्ट्रॉन की जो एडिशन होगी वो रिडक्शन में रिएक्टेंट की साइड होती है. एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है रिडक्शन का. H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू चेंजेस 1/2 H2. ये क्यों लिया गया है इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, बट आप अभी के लिए इसको याद रखिएगा. आपने एक इलेक्ट्रोड पढ़ा होगा SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो वहाँ पे ये रिएक्शन होती है जब SHE जो है आपका कैथोड का काम करता है. तो इसका हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे आगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा. और एक चीज़ आप जो ऑलरेडी 11th में पढ़ के आए हो वो चीज़ होती है ये बेटा, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन. सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस इक्वेशन इन ए सिंगल इलेक्ट्रोड सिस्टम व्हेन वी यूज़ नर्स्ट इक्वेशन. यहाँ से एक रिजल्ट आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको देखिएगा. All right, so this is just introductory part of electrochemical cell. Now we will going to discuss Nernst equation. Now this is very important part as I told earlier for numerical point of view. So इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी है स्टार्टिंग में, फिर हम इसकी बात करेंगे कि इसको यूज कैसे करना है. सबसे पहली चीज़ जो है ये कैलकुलेट करती है बेटा नॉन स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल. दो तरीके के स्टैंडर्ड EMF होते हैं बेटा. एक होता है स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल जिसको आप E नोट से रिप्रेजेंट करते हो, और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड EMF वो होता है जिसको आप कैलकुलेट करते हो जो आपकी कंडीशंस होती हैं, मीन्स 298 केल्विन, 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार प्रेशर. इन कंडीशंस को छोड़ के यदि आप किन्हीं भी कंडीशंस पे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल निकालते हो, दैट इज़ नोन एज नॉन स्टैंडर्ड EMF. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू यू. इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट नॉन स्टैंडर्ड EMF जिसको हम E ऑफ सेल कहते हैं. एक सेकंड होता है E नॉट ऑफ सेल जिसको स्टैंडर्ड EMF कहा जाता है और जिसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करते हो जो फोर्थ पॉइंट में बताया गया है, E नॉट ऑफ राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट, और इसी को हम लिख सकते हैं E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड. नाउ सेकंड important point is that Nernst equation is always apply on net cell reaction. This is very important. Now what is net cell reaction? दो हाफ हमने पढ़े थे, वन इज कैथोडिक हाफ, सेकंड इज एनोडिक हाफ. तो एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का जो भी आपने लिया होगा, और
कैथोड पे यदि हम बात करते हैं तो वहाँ रिडक्शन होता है बेटा। तो जब इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड करते हो तो हमारे पास आती है नेट सेल रिएक्शन। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नर्स इक्वेशन लगती है वो नेट सेल रिएक्शन पे लगती है यदि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो। और इस नेट सेल रिएक्शन के अंदर एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, यहाँ कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं बेटा। इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैंसिल करना होता है, या तो ये डायरेक्ट कैंसिल होंगे, नहीं होंगे तो फिर हम किसी कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू कैंसिल आउट दीज इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट होते हैं उसी को फिर आप नर्स्ट इक्वेशन में n वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हो। चलिए थर्ड, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। नर्स्ट इक्वेशन के केस में यदि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज़ करोगे तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा SRP होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। Electrode potential, as you all know, it is the tendency of an electrode to lose or gain electron. किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। दो तरीके का होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। वन इज OP, second is RP. If any electrode have tendency to lose electron, then we use term OP, oxidation potential. And if have tendency to gain electron, then we will write reduction potential. Similarly, there are SOP and SRP. Means when electrode potential of any electrode is calculated at standard condition, we will get SOP and SRP. और इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में एक डिफरेंस होता है। यदि हमारे पास कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, मान लीजिए हमने Zn लिया, तो Zn हमें पता है कि ऑक्सीडाइज जब होगा तो ये चेंज होता है Zn to Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यदि इसी का मैं रिडक्शन करता हूँ तो ये होगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Zn। नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट यदि हम करते हैं तो फर्स्ट केस में आप देखोगे ऑक्सीडेशन हुआ है, सेकंड में रिडक्शन हुआ है। तो इसका ऑक्सीडेशन जब आप मेंशन करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट लिखा जाता है, फिर प्रोडक्ट लिखा जाता है बेटा। तो रिएक्टेंट जो है वो है Zn और प्रोडक्ट है Zn2 पॉजिटिव। दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट यदि यहीं पे आप E0 लगा देते हो तो ये जो आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली यदि आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे तो अब रिएक्टेंट जो है वो है Zn2 पॉजिटिव और ये चेंज किस में हुआ है, Zn में, और यहाँ पे नोट लगा दोगे तो यह आपका बन जाएगा SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसी भी पर्टिकुलर मेटल इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होते हैं बेटा, बट माइनस साइन के साथ। इस चीज़ को याद रखिएगा। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट या मेटल के लिए जो SOP होता है उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ SRP। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार नर्स्ट इक्वेशन के अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक SRP वैल्यू दे देता है और एक SOP वैल्यू दे देता है। तो ऐसे केस के अंदर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दोनों जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो SRP की टर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। और SRP का मतलब जर्नल नोटेशन हमने अभी डिस्कस की थी। तो SRP की जो जर्नल नोटेशन होती है वो होती है ये E0 Mn पॉजिटिव टू M। दिस इज SRP नोटेशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और यदि इसी को मैं लिखता हूँ E0 M2 Mn पॉजिटिव, दिस इज SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नाउ नर्नेस्ट इक्वेशन हम दो केसेस में पढ़ते हैं बेटा। वन इज सिंगल इलेक्ट्रोड सिस्टम, जब हमारे पास एक ही इलेक्ट्रोड हो, मीन्स या तो कैथोडिक हाफ हो या एनोडिक हाफ हो। और एक हम पढ़ते हैं टू इलेक्ट्रोड सिस्टम पे, मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे।
डेरिवेशन इसका जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हमें सिर्फ इसका मेन रिजल्ट याद रखना है कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर वन इलेक्ट्रोड सिस्टम। वन इलेक्ट्रोड सिस्टम में क्या होगा, हमने एक रिएक्शन लिखी Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू M। रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा गया है यहाँ भी अकॉर्डिंग टू दिस जो ऊपर हमारे पास दिया गया था। नाउ इसके अकॉर्डिंग जो इसका नॉन स्टैंडर्ड EMF आएगा बेटा इस इलेक्ट्रोड का, दैट कम्स आउट टू बी स्टैंडर्ड EMF ऑफ दैट इलेक्ट्रोड माइनस RT/NF ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। जब भी आप नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करोगे, चाहे वन इलेक्ट्रोड सिस्टम पे चाहे टू इलेक्ट्रोड सिस्टम पे, जो रेशियो लिया जाएगा वो नेट सेल रिएक्शन का होगा और रेशियो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का। कुछ बुक्स के अंदर ये रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट है, बट उस केस में आपको याद रखना है कि यहाँ नेगेटिव साइन की बजाय पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉगरिथम ऑफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ b अपॉन a। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बेटा प्लीज़। RT/NF की यदि हम वैल्यू पुट करें, क्योंकि हम इसको निकाल चुके हैं, R की वैल्यू पुट करें, टेम्परेचर पुट करें, 1 फराडे आपको पता है 96500 कूलम होता है। तो इसको सोल्व करने के बाद ये जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है ये माइनस 0.059 अपॉन n इंटू लॉग 1 अपॉन mn पॉजिटिव। एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, नर्स्ट इक्वेशन के अंदर कंसंट्रेशन कंसीडर होती है लेकिन सिर्फ आयंस की बेटा। जो सॉलिड इलेक्ट्रोड या सॉलिड मेटल जो होता है उसकी कंसंट्रेशन कभी भी नर्स्ट इक्वेशन में कंसीडर नहीं होती है, सॉलिड और लिक्विड की। वो कंसंट्रेशन हम मान के चलते हैं यूनिटी 1 मोलर। ऑलरेडी ये चीज़ आप इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हो, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे तो वहाँ भी आप प्योर सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशंस को यूनिटी मान के चलते थे। तो सेम काम यहाँ भी है। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा बेटा ये E0 Mn पॉजिटिव टू M चेंजेस टू E0 Mn पॉजिटिव M माइनस, जो हमने अभी ड्राइव किया था। नाउ इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं जिस इक्वेशन की मैंने बात की थी। तो यदि मैं उसको इस इक्वेशन पे अप्लाई करता हूँ, देखो एक बार आप जो इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, तो इसके लिए क्या आएगा देखो E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल्स टू E0 H पॉजिटिव टू H2 माइनस 0.059 अपॉन n इंटू लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H पॉजिटिव। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये वैल्यू हमें पता है 0 वोल्ट होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। तो ये जब 0 होगा यहाँ पे, तो यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा, इस चीज़ को मैं अभी के लिए सिर्फ E एज्यूम करता हूँ, तो E कम्स आउट टू बी 0 माइनस 0.0591 अपॉन n। इसको चेंज करो थोड़ा सा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको यदि आप चेंज करोगे मीन्स इसको ओपन करने से क्या आएगा देखो, हमारे पास रिजल्ट आएगा ये log 1 माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव। log 1 की वैल्यू 0 होती है माइनस लॉगरिथम ऑफ H, इसको यदि आपने पढ़ा है तो ये pH होता है बेटा। तो यदि आप इसको थोड़ा सा और चेंज करोगे इसी इक्वेशन में, तो क्या रिजल्ट आएगा देखो, हमारे पास रिजल्ट आएगा ये E इज इक्वल्स टू 0, हमारे लिए कोई काम का नहीं है, n की वैल्यू 1 है, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.0591 इंटू ये जो वैल्यू बची सारी अंदर, ये क्या है pH, सो इंटू कम्स आउट टू बी pH। तो ये इक्वेशन यूज होती है बेटा कई बार, या तो आपको वो pH दे के E से क्वेश्चन करेगा, या फिर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे के pH कैलकुलेट कराएगा।
तो दोनों केसेस में जो है वो यहाँ से न्यूमेरिकल सोल्व होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आई थिंक एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड 1 या 2 प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को ध्यान से कीजिएगा आप। सिंगल इलेक्ट्रोड सिस्टम, इसके लिए आप लिख के देखिएगा एक बार क्या रिजल्ट आएगा इस इक्वेशन के लिए। चलिए, सो वी वर हेयर, यहाँ तक हम कर चुके थे। सो अब यदि हम 2 इलेक्ट्रोड सिस्टम की बात करें बेटा, तो 2 इलेक्ट्रोड सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होंगे, कैथोड एनोड दोनों का अपना वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। उसका डायरेक्ट रिजल्ट हमने यूज़ किया है और वही आपने यूज़ करना है, क्योंकि डेरिवेशन इसका पार्ट नहीं है, बट उसके लिए हमने थोड़ी सी चीज़ें रखी हैं, ध्यान देना है इसको। यदि ये कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन है ए प्लस बी सी सी प्लस डी, और ये मैं मान के चला हूँ कि ये नेट सेल रिएक्शन है, मीन्स इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने के बाद जो आएगी, तो इसको यदि आप यूज़ करोगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जो स्टीचोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो उसी कंसंट्रेशन टर्म के पावर बन जाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया है Zn और कॉपर का, जो नॉर्मली आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग में। तो यहाँ पे हमें पता है ये लेफ्ट कंपार्टमेंट है, तो ये एनोड का काम करेगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। सिमिलरली ये हमारे पास राइट है, तो ये कैथोड का काम करेगा। तो इसके लिए नेट रिएक्शन क्या आएगी, देखो बेटा, जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, मीन्स Zn जो है वो चेंज होगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और कॉपर का होगा रिडक्शन, तो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज होके Cu देगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम है, ये कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास जो आएगा Zn प्लस Cu2 प्लस फॉर्मिंग Cu प्लस Zn2 प्लस। सिंस कॉपर एंड जिंक आर सॉलिड, सो इनकी कंसंट्रेशन रहेगी यूनिटी, तो हमारे पास जो स्पीसीज बची हैं आयनिक, Cu2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव। अब Zn2 पॉजिटिव देखो प्रोडक्ट में है और Cu2 पॉजिटिव जो है वो रिएक्टेंट में है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है। नर्स्ट इक्वेशन को देखो ध्यान से, इनकी कंसंट्रेशंस दी हुई है। Zn की 0.01 मोलर है, ये 0.01 मोलर है, तो इनकी वैल्यूज़ को आप पुट करो। ई नॉट ऑफ सेल आप इसका वेल नोन अच्छी तरीके से जानते हो कि जिंक का जो SRP होता है दैट इज़ -76 वोल्ट, और कॉपर का जो SRP होता है दैट कम्स आउट टू बी +3.4 वोल्ट। तो दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 1.10 वोल्ट। तो इसी को हमने सिंप्लीफाई किया है, log 1/10 आएगा, यहाँ से ओपन करो, log 1 माइनस log 10, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ होगी सिंपल। log 10 की वैल्यू 0 होती है, इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से जो है ये आंसर आ जाएगा। नाउ यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, आप इनको ट्राई करके देखिएगा। थोड़ा सा जो चीज़ यूज होगी वो मैं बता देता हूँ। इस एग्जाम्पल में जो यहाँ लिखा गया था, यहाँ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कैंसल आउट हुए थे, मीन्स कैथोड और एनोड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टाइम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए थे। बट यदि आप इस पर्टिकुलर केस में देखोगे तो Mg चेंज हुआ है Mg2 प्लस में, मीन्स यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे, और Ag प्लस चेंज हुआ है Ag में, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं होंगे बेटा। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो टर्म आएगी वो आएगी हमारे पास 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 2Ag, कैथोड पे रिएक्शन होगी ये। अब ये जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, वो Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली यदि आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दो तो इस चीज़ को देखो एक बार, यहाँ जो कंसंट्रेशंस हैं बेटा 0.01 और 0.001, मीन्स दोनों कंसंट्रेशन सेम है। अब नॉर्मली रेशो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का,
और यदि कंसंट्रेशन सेम है तो जो सबसे पहला आंसर दिमाग में आता है वो आता है ये कि ये दोनों सेम होंगे, कैंसिल आउट होके 1 आएगा, log 1 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से जो ई ऑफ सेल आएगा वो ई नॉट ऑफ सेल के बराबर आएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा बेटा, इस चीज़ को ध्यान देना। मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, कंसंट्रेशन यदि सेम है तो आप मैक्सिमम टाइम यही आंसर लिखते हो कि ई सेल और ई नॉट ऑफ सेल बराबर होंगे। बट वो तभी बराबर होते हैं बेटा जब वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ये आंसर नहीं आएगा। इसको आप सोल्व करके देखिएगा एक बार। नेक्स्ट देखिए, सेकंड एग्जांपल में राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, दिस इलेक्ट्रोड इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल हमें पता है 0 वोल्ट है। और यदि ये राइट साइड पे लगा हुआ है तो मीन्स ये कैथोड का काम करेगा, और कैथोड का काम करेगा तो इसका रिडक्शन होगा बेटा। और रिडक्शन की जो SHE की इक्वेशन आती है वो इक्वेशन वही आती है जो हमने अभी पीछे लिखी थी, मीन्स 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू H2। सो आप इनको करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो आप शेयर कीजिएगा उसको। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हमने एक इक्वेशन लिखी थी पीछे, और इसके लिए जो नर्स इक्वेशन आई थी वो आई थी ये। अब इक्विलिब्रियम जब अटेन होगा किसी सिस्टम में बेटा, तो उसकी जो ई ऑफ सेल की वैल्यू है नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ की, ये वैल्यू 0 हो जाती है। क्योंकि स्टैंडर्ड ईएमएफ 0 हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का यदि आप निकालोगे तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखी होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है बेटा ये, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ तो कभी 0 होगा नहीं। हाँ, नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ 0 हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ SRP एंड SOP। और इक्विलिब्रियम पे यदि आप इस रेशियो की बात करते हो तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये रेशियो जो है वो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने KC लिखा होगा इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इन्हीं दोनों चीज़ों का हमने यूज़ किया है। देखो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू K को रिप्रेजेंट करेगी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देखो ये 0 हो जाएगा, ये log K हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से रिजल्ट आएगा log K इज इक्वल्स टू N ई नॉट ऑफ सेल डिवाइड बाय 0.0591। यदि हमें K निकालना है तो हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और एंटी लॉग यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो इस चीज़ को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा कि एंटी लॉग निकलता कैसे है। जैसे मान लीजिए हमारे पास लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल्स टू K है बेटा। अब एंटी लॉग का मतलब ये है कि लॉगरिथम का इन्वर्स फंक्शन होता है वो। तो जब आप दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, देखो एंटी लॉग इनटू लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल्स टू K, सॉरी एंटी लॉग ऑफ K। सो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट, यहाँ आएगा x, और एंटी लॉग ऑफ K की वैल्यू क्या आएगी। यदि आपके पास कॉमन लॉग है, मीन्स जिसका बेस 10 है, तो एंटी लॉग का मतलब होता है 10 रेज टू पावर जिसका भी आपने एंटी लॉग निकालना है, तो ये आंसर आ जाएगा 10 रेज टू पावर K के। और यदि ये मान लीजिए नेचुरल लॉग है तो उसका बेस हमें पता है एक्सपोनेंशियल होता है, तो उस केस में ये आंसर हो जाता e रेज टू द पावर K। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, आप या तो ऐसे लिख लीजिए और इसको आप फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10 रेज टू पावर बन जाएगा जो भी आपके पास था। चलिए नेक्स्ट देखिए, n यहाँ भी वही है, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट होंगे नेट सेल रिएक्शन आते आते। n को ध्यान से समझिएगा ये है क्या। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल।
फिजिक्स में आप एक रिलेशन पढ़ते हो बेटा। रिलेशन ये होता है कि जो वर्क होता है दैट इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। फिजिक्स में आपने रिलेशन पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है बेसिकली। अब यहाँ पोटेंशियल, ईएमएफ भी तो एक पोटेंशियल होता है बेटा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट इट इज़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ईएमएफ जो है वो हमारा V को रिप्रेजेंट करेगा और W तो सेम ही है, Q को हमने यहाँ भी Q लिखा है। बट फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपने किए होंगे इस चैप्टर में, जो फर्स्ट आता है स्टार्टिंग का पार्ट जो है, तो वहाँ आपने ये पढ़ा होगा कि Q जो हमारा होता है कितना चार्ज यूज होगा, दैट इज इक्वल्स टू N इंटू एफ। F is nothing but this is charge on 1 mole of Faraday and N is number of electrons, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें देने पड़ते हैं बेसिकली। तो इन चीज़ों को जब आप यहाँ पुट करोगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आएगा ये W इज इक्वल्स टू Q इंटू ई एम एफ। तो Q की वैल्यू हमने NF पुट की है, तो लास्ट रिजल्ट जो आएगा वो आएगा W इज इक्वल्स टू NF E ऑफ सेल। नाउ अब ये जो वर्क हुआ है, ये वर्क एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? द इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय ए गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इट्स गिब्स फ्री एनर्जी। ये जो वर्क हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। गिब्स फ्री एनर्जी यू वेरी वेल नो, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट होता है, किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बताती है ये। तो डेल्टा जी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और डिक्रीज है तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को माइनस डेल्टा जी के बराबर पुट कर देते हैं। इसी को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आएगा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। दिस इज़ नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ, और यदि आप स्टैंडर्ड ईएमएफ लोगे तो रिलेशन भी हो जाएगा डेल्टा जी नोट। आल्सो डेल्टा जी नोट हमारा होता है माइनस आर टी एल एन के बराबर। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, ई नोट ऑफ सेल की जो वैल्यू आई थी उसको हमने थोड़ा सा यूज़ किया है इस पर्टिकुलर रिलेशन में, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी। 11th में भी आपने किया होगा इसको ये। और क्योंकि यहाँ कॉमन लॉग नहीं है तो नेचुरल लॉग को जब कॉमन लॉग में चेंज करते हैं तो हमें पता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो नस्ट इक्वेशन से बेसिकली यही 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइदर वो आपसे कैलकुलेट कराएगा नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ किसी सेल के लिए, या फिर किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कराएगा, या फिर किसी रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कराएगा। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। एन एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा हर केस में, और वो होता है कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ कैंसिल आउट होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ यूज़ हुए हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कैरी करने के लिए। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, आप करके देखिएगा उनको। जैसे मान लीजिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन दी गई है आपको, जिसकी ये वैल्यू दी गई है, और डेल्टा जी आपको निकालनी है बेटा। तो डेल्टा जी नोट किसके बराबर आई थी? माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल के। तो एफ हमें पता है क्या आएगा, ई नोट ऑफ सेल हमें दे रखा है, तो हमारा एक ही टास्क है यहाँ पे कि हमें इस एन की वैल्यू का पता चले। अब एन की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी? एन की वैल्यू पता चलेगी बेटा नेट सेल रिएक्शन से, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट हुए होंगे। तो इस चीज़ को यदि आप ध्यान से देखोगे तो SN4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये चेंज हुआ है SN में, और क्रोमियम चेंज हुआ है Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, एक में 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। तो जब आप इनको कैंसल्ड आउट करोगे तो इस इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी बेटा 6। तो बाकी सब सेम रहेगा, n की वैल्यू 6 यूज होगी यहाँ पे। सिमिलरली सेकंड जो आपको दिया गया है
दिस इज नथिंग बट दिस इज नर्स इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रोड सिस्टम पे आपने नर्स इक्वेशन यूज़ करनी है, आप ट्राई कीजिएगा इसको। एंड लास्ट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल्स दोनों इलेक्ट्रोड के दिए गए हैं। तो अभी जो हमारा रिलेशन आया था लास्ट, वो रिलेशन आया था ये K इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ एन ई नॉट ऑफ सेल अपॉन जस्ट ए मिनट, हाँ जी, एन ई नॉट ऑफ सेल अपॉन 0.059। तो ई नॉट ऑफ सेल आप वही निकालोगे जो आप निकालते आए हो, मीन्स ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। नाउ एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी बिल्कुल, उसका एक बार यूज़ करते हैं। यहाँ देखो, नाउ बोथ एस आर पी आर पॉजिटिव। नाउ तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि यदि दोनों एस आर पी पॉजिटिव हैं तो जो ज़्यादा पॉजिटिव होता है वो कैथोड का काम करेगा, जो कम पॉजिटिव होगा वो एनोड का काम करेगा। तो नाउ ई नॉट ऑफ सेल यहाँ से क्या आएगा बेटा, ई नॉट ऑफ राइट मीन्स कैथोड, ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है 1.44 माइनस कम पॉजिटिव 0.68। तो इसको आप यदि सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.76 वोल्ट। तो इनका आपने यूज़ करना है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बेटा, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स की ट्राई कीजिएगा, और जिन चीज़ों पे मैंने फोकस किया है, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, उन चीज़ों को गौर से कीजिएगा बेटा थोड़ा सा। चलिए, ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू, हैव ए गुड डे।